Hello friends, welcome once again. Now in the last video you would have heard Devang Ashtunkar speaking about his experience with the self-management leadership and why he chose that. He is a recommended candidate and he has first undergone the SSB interview training with AFOSOP, and later he realized that he need to develop himself as a person, so he chose SML. Whereas what we recommend is to go through the SML module first and then go through the SSB. And this was asked by him by Mr. Athar Patil, who is the director of Armed Forces Preparatory Institute, which is located at Nagpur, and he runs a program called NDA Vision 60. Due to Corona, he has not taken 60 boys, he has taken about 40 plus, a little plus minus. And this I conduct the self-management and AFOSOP classes for them. So Athar accidentally happened to give me a ring, and I got him into this discussion with the FPI student with the permission of Athar, and I have given an extract of that in the previous video. I'll share it in the I button here. Why Devang chose self-management leadership after he has gone through the SSB module. So I'll request you to watch that. Now AFPI has incidentally taken this project, Armed Forces Officer Selection Orientation Program Assisted Introspection, which is now called Self-Management Leadership, and within that Assisted Introspection is one of the module as a training curriculum for their 2 years program that they are conducting for the 11th and 12th student that they are currently taking. So I am associated with them and I am conducting this both SML and SSB classes for them. So these are the current students. I have told about these students in the last video. Now very clearly I hope that you people are getting an understanding that when you go to the SSB interview, they are testing your personality, and to test your personality the psychological test, GTO interview, they are the testing tools. So I think there is a clear understanding on your part that there is no point practicing TAT, WAT, SRT when there is a deficiency in your personality. So you have to identify that deficiency, that gap between what is the expectation and where do you stand, and that gap has to be bridged. And to do this you really need clear-cut understanding in terms of the knowledge, what is the gap, what needs to be changed within you, and second is how to change that. Now unfortunately how to change requires a certain degree of different set of skills within us. As coaching people, we cannot train you on the bridging the deficiency based on our assessment knowledge which has been taught to us by DIPR. That's why we have trouble even after doing a lot of psychological research and maybe doctorate. We tell you to hide core quality and hide weakness in your stress handling and all that. That's because we don't know. So we claim that we are experts, but we actually have no skills. So that's a deficiency on us as training people. And once you know what needs to be changed, and once you know what is a method to change, the next biggest thing is the desire. Now Ashtang के साथ एक सबसे अच्छी बात थी कि he had his own deficiencies. In fact, I was concerned कि ये बंदा इस बार निकलेगा नहीं, यहाँ तक सोचा था मैंने, because of whatever was coming out in the psychological response. उसने उसमें वीडियो में भी बोला हुआ है. In fact, इस वीडियो में भी उसका expression है. But what is very interesting about this boy is a very strong desire to correct it. Instead of hiding them, he was willing to correct, and he was concerned ये कैसे होगा. So one thing he realized, even though वो 17.5 साल का ही लड़का है, शायद 17 साल का है, he is not even finished 12th, कि उसको एक चीज़ पता चल गया था, इस डेफिशिएंसी के साथ वो निकलेगा नहीं. There is no point hiding. So hiding करने से नहीं होगा, उसको डेवलप करना था. And since age is less, willingness was there, वो निकल गया. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है उस तरीके से इस लड़के का एक केस स्टडी कि willingness to change, provided you know what to change, and provided you are lucky to have a guide who knows how to correct it, rather than asking you to hide something, which is lack of integrity on the part of the people who are involved in such training. So वो बात आपको उस वीडियो से बहुत अच्छे से समझ में आएगा. And आपको पता है कि the change has to happen at 4 levels. The physical level, which is the gross level, बहुत ही मोटा मोटा है. The intellectual level, सोच के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, problem solving skills, conflict resolution, analytical skills, evaluation skills,
decision making skill, judgment, discriminatory skills, implementation skills, organizing skills, goal setting and achieving it. These are the various stress handling, of course. So that now you would have realized the videos of AFSOP are forcing you to think. It is not giving you something ready made. तो वो पूरे ट्रेनिंग में अगर आप इसको कर दो तो आप देखो मेरे वीडियोस को देखने से अगर आपको सोच में प्रेशर आता है, once you develop it, how beautiful the entire process can become, rather than trying to fool the SSB by hiding core quality. That approach has to change. I don't know आपको मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं है. And then next is the feeling dimension में, भावनात्मक स्तर पर है ना, इंटरपर्सनल स्किल्स, योर इमोशनल, योर एबिलिटी टू रिलेट विद अदर एट एन इमोशनल लेवल, है ना. सोशल इंटेलिजेंस भी इसको बोलते हैं, है ना. इसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डेवलपमेंट, सोशल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट एंड इंटरनल मोटिवेशन एंड वेरी अदर फैक्टर्स, है ना. इन टर्म्स ऑफ SSB इसके अंदर सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, वो SSB का रिक्वायरमेंट है. बट एसेंशियली दैट इज EQ, इमोशनल क्वोशिएंट. एंड लास्ट इज द वैल्यू डायमेंशन. व्हाट्स योर वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम. When I am training you to hide core quality, what quality of mine is coming out? When I am asking you to suicidal tendency को भी छोड़ दो, तो मेरे अंदर आपको क्या दिखता है? मैं जब ऐसी ट्रेनिंग कराता हूँ आपको ये सोचना पड़ेगा. So my claims and my actions are not aligned. So I am a person of disintegrity. तो आपको ये पहचानना पड़ेगा. Similarly, पिछला एक बंदे ने साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट करवाया था. जैसे कुछ लोग साइक टेस्ट मास्टरी कराते हैं, फिर फ़ोन पे बोलते कहानी ऐसे कर दो वैसे कर दो. तो आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग इट. दोस्त ऑफ यू विश टू जॉइन मी, यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप, आई विल टेल यू. यहाँ पे आई विल नॉट सेंड यू अ नोट एंड आई विल नॉट गिव यू अ कॉल. वी विल हैव अ जूम मीटिंग एंड यू विल एक्सप्लेन मी व्हाई यू वर थिंकिंग एंड आई विल नॉट टेल यू व्हाट टू चेंज इन दिस स्टोरी. आई विल टेल यू देयर इज अ डेफिशिएंसी इन योर पर्सनैलिटी. स्टोरी में चेंज करने से डेफिशिएंसी इन पर्सनैलिटी चेंज नहीं होगा. सो दोस्त ऑफ यू इंटरेस्टेड कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन 8275577650 and you can experience the test that I conduct and what kind of a clarity you will get. You will be able to analyze कि यार ये तो गलत हो रहा है. इनफैक्ट मैंने उसका एक वीडियो भी डाला भी था, द कोरिलेशन बिटवीन TAT एंड SD. अगर नहीं देखा तो जरूर उसको देख लेना. मैं इसमें आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. तो दैट बॉय इज नाउ जॉइंड माई SML क्लासेस फ्रॉम दिस मंडे ऑनवर्ड्स एंड ही रियलाइजेस कि वो पहले कुछ भी लिखता था. आप क्या करते हो? डेलिबरेटली मतलब कॉन्शियसली आप अपने स्टोरियों में OLQ डालते हो. इनफैक्ट देयर इज अ कोचिंग हु सेज स्प्रिंकल OLQ. सो डेलिबरेटली आपको लगता है कि OLQ के वर्ड्स को अगर TAT WAT में डाल दिया तो नहीं, वो नहीं. दैट्स नॉट द वे इट इज. व्हेन यू हैव दोज क्वालिटीज दे विल मैनिफेस्ट. वो क्वालिटीज बीज है. अगर बीज आपके अंदर होगा तो जरूरत पड़ने पे जब आपको वो सिचुएशन आएगा वो बीज से ऑटोमेटिकली फ्रूट्स पैदा हो जाएगा, बिकॉज बीज में वो गुण है. सो देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. साइकोलॉजिकल टेस्ट को एक एकेडमिक लाइन पे तैयारी करने से ये फ्लॉज है जिसके कारण इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है. सो आई डोंट नो वेदर मेरी बातों को आप लोग कितना समझ में आ रहे हो, वो आप मुझे ज़रूर लिख के बताना. मैं तो एफर्ट लगा रहा हूँ, बट मुझे ये लगता है कि मैं कभी कभी भैंस के सामने बीन बजा रहा हूँ. देयर इज अ मुहावरा, भैंस के सामने बीज बनाना. मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे SSB के लड़के लड़कियाँ समझना ही नहीं चाहते. तो देयर इज़ अ रेजिस्टेंस. तो मैं कितना भी बीन बजाऊँ फ़ायदा नहीं है. मैं इस वीडियो के बाद एक 41 या 42 ईयर ओल्ड एक बंदा है, प्रदीप करके है, वो SSB बहुत बार दे चुके हैं. 2016 से वो मेरा वीडियो देखना शुरू करा और अभी उन्होंने 2 हफ्ते पहले SML का क्लास ख़त्म किया. ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर क्या बोलते हैं SSB एनी मोर नाउ. एंड नाउ ही इज़ इन टू कॉपरेट सिक्योरिटी, कॉपरेट रिलेशनशिप, जेट एयरवेज में भी काम करते थे, क्रूज लाइनर में भी थे, इंटरनेशनल क्रूज लाइनर में. मतलब ऑलमोस्ट कुछ 2-3 कंट्रीज को छोड़ के आई थिंक ही हैज ट्रैवल्ड ऑल कंट्रीज सिंपली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये क्या बोल रहा करके ही हैड कम. एंड नाउ ही रिग्रेट्स कि इफ़ ही हैड डन दिस ट्रेनिंग ऑफ SML लॉन्ग टर्म बैक प्रॉब्ली वो अपना TA के अटेम्प्ट को कर सकते थे. एंड विद दैट क्लैरिटी यू वुड हैव परफॉर्म वेल. मे बी अगर अच्छा हुआ तो शायद रेकमेंड भी हो जाते. तो डिले मत करो, समझो. मेरी बात बहुत कड़वा सच है बट सच यही है. आपको सच समझना पड़ेगा. तो मैं प्रदीप जी का वो वीडियो भी मैं अगली बार डालूंगा अगर आप लोग कमेंट डालोगे तो. एंड सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट SSB का TAT WAT ठीक करने से आप ठीक नहीं होंगे. आपके अंदर के वो अष्टांग से अभी जो मैं वीडियो दिखाऊंगा उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो आई रिक्वेस्ट टू वॉच दैट वीडियो, दिस वीडियो अष्टांग से. उसका नंबर भी है, बात कर सकते हो. और AFPI का जो डायरेक्टर है अथर्व, उनसे भी बात करना. नागपुर में है वो खुद भी एक SSB एस्पिरेंट्स थे ना, तो अभी उनका शायद वो TA के लिए एलिजिबल है.
but right now he is into the Mission 60 and all that. And why, you can ask him, why did he taken this entire program for 2 years for their students? उनके पास भी बड़े ऑप्शंस हैं, नागपुर, बैंगलोर, भोपाल, कहीं से भी बढ़िया बढ़िया नंबर 1 ला सकते थे. तो यू कैन आस्क व्हाई डिड ही चूज दिस. और बच्चों से बात करना कि उनको इस पूरे प्रोसेस से, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप क्या फ़र्क पड़ रहा है. सो है ना, इज रनिंग दिस विजन 60 प्रोग्राम, एंड सिंस आई एम एसोसिएटेड आई कैन से विद सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट इज प्रोड्यूसिंग इन AFPI. सो वो जरूर देखना है ना. सो रजिस्ट्रेशन फॉर दिस सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप एंड AFOSUP इज ओपन. तो उसका जो डिटेल से मैं बता देता हूँ आपको. और इसमें मैं आपको ये एक सोचने की बात है कि आप सिर्फ टेस्टिंग टूल्स के ऊपर तैयारी करके मत जाओ, पहले अपने आप को ठीक करो. सो 90% ऑफ योर ट्रेनिंग शुड बी टू डेवलप योरसेल्फ एज अ पर्सन, बिकॉज ये आपके व्यक्तित्व के आधार पर सिलेक्शन है. तो 90% एम्फेसिस शुड बी टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी एंड लीडरशिप स्किल्स, है ना, पर्सनैलिटी एंड लीडरशिप स्किल्स. और फिर 10% इज वो SSB के टेस्टिंग टूल्स, कि भैया वो SSB में GTO क्या होता है, फट्टाबल्ली TAT क्या होता है, उसकी समझ, सिर्फ इसकी समझ, 10% की समझ. स्विमिंग कैसे करते हैं उसकी थ्योरी में सीख लिया, लेकिन अगर पानी में नहीं उतरोगे तो कैसे होगा. सो दिस इज द बेसिक ट्रेनिंग विच अनफॉर्चुनेटली नोबडी स्पीक्स ऑफ. एवरीबडी सेज वी हैव डवटेल, बट एक्चुअली उनका सिलेबस में जाके देखो, किसी बुक को देख लो, किसी वेबसाइट में जाओ, इट इज़ सिंपली TAT, WAT, फिलिंग, PIQ. आपको उलझा के रख दिया है SSB के प्रोसीजर में. सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. Many people say, sir, your videos are very different. They are very different because I'm talking this and they are talking this. ये तो, this is completely a messed up. SSB का मतलब आज TAT, WAT, SRT हो गया. CIQ भरो, PIQ भरो, हाउ टू, टिप्स एंड ट्रिक्स. पर्सनालिटी के टेस्ट में ट्रिप्स एंड टिप्स नहीं चलता, वो चलेगा एकेडमिक टेस्ट में. पर्सनालिटी के इसमें एक ही चीज चलेगा, डेवलप इट. सो डेवलप इट. So if you're understanding that, the registration for the next batch is open. I'll give you the details. The details are, next batch is starting on 26th of April. You have an option of 2 weeks / 4 weeks ka composite batch. We will suggest you to go for 4 weeks option. In case you wish to go for 2 weeks, ये 26th of April से शुरू होगा और 8th of क्या बोलते हैं, मई तक चलेगा. और अगर 4 weeks में जाते हो तो 26th of April से लेके 22nd of मई तक चलेगा. 4 weeks ऑप्शन लेते हो तो 26 से लेके 8 तक आपका सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का क्लास चलेगा. और वो खत्म होने के बाद 10th of मई से लेके 22nd of मई तक SSB का क्लासेस चलेगा. और अगर आप 2 weeks ऑप्शन लेते हो, कॉम्पोजिट बैच 2 weeks, तो 26 लेके 8 तक के बीच में 2 घंटे SML और उसी ड्यूरेशन में 2 घंटे AFOSUP. वो बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है. तो वी विल सजेस्ट यू गो फॉर 4 weeks ऑप्शन. 2 weeks SML खत्म होने के बाद 2 weeks का वो, उससे 2 फायदा है. एक तो आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपको अपने ऊपर काम करने में टाइम मिलेगा, मेरा आपसे इंटरेक्शन का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, एंड पूरे चीज़ को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली ले जा सकते हैं, बजाय कि दोनों कोर्सेज को एक साथ लेके रश करने के लिए. इट इज़ ओके इफ़ यू डोंट हैव टाइम, बट आवर रिकमेंडेशन इज कि यू टेक बोथ ऑफ देम सेपरेटली. मतलब एक खत्म होने के बाद दूसरा. फीस एनीवे वेदर इट इज़ 2 weeks और 4 weeks इट इज़ सेम. सो जब फीस सेम है तो विल सजेस्ट यू इंस्टेड ऑफ 2 weeks गो फॉर 4 weeks. अगला बैच जो 26th of April से शुरू होने वाला है, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट का वीक है. SML का प्रोग्राम इंडिपेंडेंट है, SSB में इट्स अ साइक टेस्ट वीक. तो जो लोग PPNDT एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट का कंप्लीट 500% क्लैरिटी जाना चाहते हैं, वो अगले वीक को जा सकते हैं. और इसके लिए रजिस्टर करने के लिए यू हैव टू सेंड मी अ मैसेज एट 8275577650, नीचे दिया हुआ है. और क्लास टाइमिंग जो है SML का वो है 6 AM to 8 AM मंडे टू सैटरडे. और जो SSB का है वो 8:45 to 10:45 AM. सो अगर आप 2 weeks लोगे तो पहले ये, उसके बाद इमीडिएटली ये. दैट विल बिकम लिटिल हेक्टिक. So this is the number on which you have to register. If you have any query, you can call me. And if you feel these videos are helpful, kindly share it. अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, I'll request you to kindly press the subscribe button. And अगर like पसंद आता हो तो like कर देना. And इसके अलावा जो 26 के बाद जो अगला बैच है, 26th of April के बाद जो अगला मई में बैच शुरू होगा, कुछ लोग मई का भी टाइम टेबल पूछ रहे थे, तो मई का बैच 3rd of May से शुरू होगा. एंड इसमें जो 2 weeks का बैच होगा वो होगा 3rd to 15th, एंड 4 weeks का होगा 3rd to 29th of May. तो इसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो अभी से एडवांस में.
ताकि आपका सीट कंफर्म हो जाएगा. टाइमिंग विल बी सेम 6 AM to 8 AM फॉर SML एंड 8:45 10:45 फॉर दी एयरफोर्स. रजिस्ट्रेशन के लिए यू हैव टू सेंड मी अ मैसेज व्हाट्सएप में से ऑन दिस नंबर 8275577650. 3rd of May वाला जो बैच होगा इट विल बी ए GTO बैच. तो जो लोग ग्रुप टेस्टिंग अकेला भी करना चाहते हैं तो आपके पास पूरा कॉम्पोजिट बैच का ऑप्शन है, ओनली SML का ऑप्शन है, ओनली SSB का ऑप्शन है, और SSB में साइट टेस्ट का ऑप्शन सेपरेट, GTO एंड इंटरव्यू का सेपरेट है. और उसके अलावा फ्रेशली जो हमने स्टार्ट किया साइट टेस्ट असेसमेंट भी आपको वीडियो फीडबैक के साथ आपको दिया जाएगा और कंप्लीट क्लैरिटी के साथ. तो वो भी ऑप्शंस है. आपको जो भी ऑप्शन चाहिए यू कैन व्हाट्सएप में 8275577650 आई विल गेट बैक टू यू. 500% क्लैरिटी का वादा है. एंड ड्यू टू कोरोना दीज क्लासेस आर ऑनलाइन जूम मीटिंग के ऊपर होगा. तो अभी ऑफलाइन क्लासेस का हमने कंसिडर नहीं किया है. महाराष्ट्र इज एनीवे बैड इन टर्म्स ऑफ कोरोना क्राइसिस एंड 500% क्लैरिटी का वादा है. जब तक आपके एफर्ट में क्लैरिटी नहीं होगा, आपके एफर्ट में वेक्टर दिशा नहीं आएगी, एफर्ट को अलाइन नहीं कर सकते. मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आपको टारगेट ही नहीं पता. अंधेरे में तीर चलाने से क्या फ़ायदा. सो लेट्स हैव ए फोकस्ड एफर्ट क्लैरिटी के साथ. तो वो चीज़ अभी हम हिमांशु से जब बात करेंगे, देवांग से जब बात करेंगे, the conversation between Devang and Mr. Athar Pandit, who is the director of Armed Forces Preparatory Institute, Nagpur, AFPI नागपुर के हैं. तो इन्होंने इसमें मैं ब्रॉडली बताया था. आई रिक्वेस्ट उसको लास्ट तक देखना क्योंकि जो टॉपिक इन्होंने कवर किया, पहला तो इन्होंने ये दिया हुआ है कि पहला सवाल तो इनसे शायद यही पूछा है कि आपको इतने सारे कोचिंग है, नंबर 1 एवरीबडी क्लेम्स है, सो मेनी रिकमेंडेशन का वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बिग क्लेम्स है ना. वाई डिड यू चूज़ एयरफोर्स UP. तो उन्होंने बहुत बढ़िया क्लैरिटी के ऊपर जवाब दिया, तो ज़रूर सुनना. इसी वीडियो में इन्होंने देवांग ने अपना SPI सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट औरंगाबाद में भी एडमिशन का ट्राई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उनका एज के कारण मिला नहीं था. बट एज पार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन उनको डायरेक्टर SPI ने परमिशन दिया था कि वहाँ जाके वो अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सके. तो वहाँ के बच्चों का एक एटीट्यूड है कि अभी SPI में मिल गया तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा. तो अथर ने बहुत अच्छे से बोला, 17 साल के लड़के ने बड़ा क्लैरिटी से बोला कि SPI में मौका मिलने से एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर अपने को काम ही नहीं करोगे तो उस प्लेटफॉर्म को फ़ायदा नहीं उठा पाओगे. तो बहुत बढ़िया एक यंग टीनेजर है वो, ही इज़ नॉट इवन एन एडल्ट. कितना मेच्योर रिस्पॉन्स दिया है. आई फाइंड कि मेनी एडल्ट्स जो कि CDS एंड TGC के लिए जा रहे हैं या सर्विस सेंटर के लिए जा रहे हैं, दे लैक द काइंड ऑफ क्लैरिटी एंड द काइंड ऑफ एफर्ट का अलाइनमेंट व्हाट दिस बॉय हैज शोन, देवांग, है ना. एंड नॉट दैट कि व्हेन he came to me, he had a lot of flaws. Psychological test में तो बहुत ही गड़बड़ आ रहा था, है ना. Then he has shared his SSB experience and especially उसने SSB इंटरव्यू के बारे में जब सवाल किया था तो इंटरव्यू में ये एड एक्सपीरियंस जहाँ पे उसका इंटरव्यू से 20 मिनट ही चला था, 20-22 मिनट, तो उसको लगा ये गड़बड़ ही हो गया. तो उसमें भी एक बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन है ऑन हिज इंटरव्यू. एंड देन किसी लड़के ने इससे पूछा कि देवांग का इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर कैसे काम किया, बिकॉज आपको पता है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बिकम्स अ मेजर डेफिशिएंसी फॉर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, बिकॉज हम थोड़ा सा उस पर में भी काम नहीं करते व्हाटएवर. तो देवांग ने उसको कैसे इम्प्रूव किया उसके बारे में बताया हुआ. और एक और स्पेशल पोर्शन है जहाँ पे जो लोग अभी NDA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रिटर्न जो आगे के NDA के लिए, तो देवांग ने अपना NDA का प्रिपरेशन को कितना एडवांस में स्टार्ट किया था और ओल्ड पेपर्स को कैसे किया था. तो देवांग का कुल मिला के ये बोला जाए तो ये बोलूँगा कि इसने अपने NDA का रिटर्न के लिए ही बहुत पहले से, करीब 1-1.5 साल पहले से ही शुरू कर दिया था और बहुत चैनलाइज तरीके से किया था. एंड जब SSB में आया तो पहले SSB में आया, जब उसने देखा गड़बड़ है तो ही वॉज स्मार्ट इनफ एंड स्मार्ट टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ गैप, और घबरा भी गया था कि ये क्या आ रहा है. सो दैट रियलाइजेशन, उसको छुपाना नहीं है ना. कोर क्वालिटी को हाइड करना पता नहीं कैसे वो आपको वो कोई ट्रेनिंग देता है. छुपाना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करके उसको ठीक करना है. तो देवांग का एक और बहुत बढ़िया बात था एक्सेप्टेंस ऑफ हिज मिस्टेक. उसने कभी टाल मटोल नहीं किया, हाँ सर ये गड़बड़ मेरे अंदर आ रहा है. एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. व्हेन एक्सेप्टेंस आएगा उसके बाद फिर कैसे उसको चेंज करना है. एंड देन जब आपके अंदर एक स्ट्रांग इच्छा शक्ति होगी वो चेंज भी होगा. तो उसने ये बात मिस्टर अथर पंडित से डिस्कस किया था कि कैसे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है. तो जो आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं या जो भी बाकी इंस्टीट्यूट में जो भी NDA देने का प्लान कर रहे हो या SSB का कर रहे हो, अदर एंट्रीज ऑल्सो, देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम दिस बॉय इन टर्म्स ऑफ हिज ability to accept his mistake and correct it. I think even adults we don't have as part of adults training में हम गलत करते हैं.
कोर क्वालिटी को छुपाने की बातें कर जाते हैं। हमें भी देखने की ज़रूरत है इन बच्चों को, यंग 17 साल के बच्चों को गुमराह नहीं करना हमने। सो लेट अस सी दी कन्वर्सेशन बिटवीन मिस्टर अथर पंडित एंड देवांग। तो अगला जो वॉइस है वो मिस्टर अथर पंडित का है, who is director आर्म फोर्सेस प्रोप्राइटरी इंस्टीट्यूट। सो लिसन टू दिस वीडियो एंड मुझे जरूर फीडबैक में बताना कि इस कन्वर्सेशन से क्या समझ में आया। इट्स नॉट दैट हिज एक्सपीरियंस विल नॉट हेल्प यू टू clear SSB, and neither it's a template. Only thing is that how can a person who is committed work on himself and improve? That's the thing that I had to learn. कि recommended का कोई tips and tricks नहीं देने वाला है वो, और वो देता भी तो आपको लेने की जरूरत नहीं है. So let's listen to Mr. Athar Pandit, and for those people who wish to join the next batch, 8275577650 is the number on which you do WhatsApp. So let's listen to Athar and Devang ka conversation. Hi Devang. First of Hi, all, sir. congratulations, heartiest congratulations. Thank you, sir. I just wanted to know, all this, every candidate generally in this tendering age goes through YouTube, and there are various big infrastructures available, coaching centers available throughout the country. What it made to you to land up to Babu sir, where he is not having although this time it was totally online, but then why you pick up this particular thing instead of going for any other else who wherein a lot of success stories are being with due respect to all of them, but then a lot of success stories are being read. There are GTO grounds available, there are team of assessors available. Why did you came to Babu sir, or for that matter AFSOP? Okay, so means I knew Sandeep Raj sir from beginning because he was my neighbor. So Okay. he told me last year to watch videos of AFO SOP. Okay. Now, after I cleared my written, he told me to watch the videos of AFO SOP. And previously I used to watch many videos of other academies. Okay. So in this sense, I found this AFO SOP totally different. Okay. And basically, I knew that SSB is a personality test. So I need to work upon my personality. And how Right. do I do that? I got a clear idea that AFO SOP would be a best choice for me. Okay. And then I started watching more videos. And then I made up my mind that I am going to AFO SOP. Okay. Okay. Can you just elaborate a little about your background, that from where you belong to, and where you having, as you mentioned that Wing Commander Sandeep Raj sir was your neighbor. Are you belonging to a military background? No. Means previously, before he joined Army, Air Force, he used to live beside our house, next to our house. So I am basically from Aurangabad, Maharashtra. I am from a civilian background, pure civilian background. Just my brother-in-law, means his cousin brother-in-law, he is in Army. So he was posted at NDA, and I went couple of times to NDA. So that motivated me to incline towards this field. Wonderful. Have you tried for this institutes like SPI or others? Yes, it was in my mind to try, but the thing was my date of birth is 13 July 2002, and all of these institutes, they have their maximum age starting from September. Yeah, born between September onwards. So I was just not eligible for this. Okay. Because being in Aurangabad, you must definitely had a idea about SPI and all, right? SPI. And so now two of my friends from SPI, after this, I got this SSB and all. I thought कि अभी थोड़ी practice कर लेते हैं इस सब की. Then for some days I went to SPI to do group discussions with those students, and the SPI director allowed us. So in that, a couple of friends of mine were also there with me for SSB. So they couldn't make it this time. And I was able to clear it. So it was an amazing experience. Like this itself shows students very much near to your age, junior to you by 1 year, are extremely right. That is what I keep telling them. But then the kind of government patronship is there towards SPI. So people have got a very stubborn thought that once you get into SPI, you will definitely going to No. Things are never like that. It is not about anything. मतलब लोग वहाँ जाके भी नहीं करते हैं, sir. It is not. It's just you get a platform to perform in SPI.
but Exactly. actually you need to develop yourself in such a way that you Yourself. clear SSB. Absolutely, absolutely, दिस इज absolutely. ट्रू Well इवन said. फॉर सैनिक स्कूल स्टूडेंट। ये जो अभी बात बोला है वो सैनिक स्कूल के भी, उनको भी बच्चों को लगता है हम सैनिक स्कूल में हमारा तो हो ही जाएगा। नहीं होगा। आप सैनिक, Many of the Sainik school students got screamed out on the very first day. अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं करोगे उठा के बाहर फेंक देंगे। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। टीएटी ठीक नहीं करना, खुद को ठीक करना है। Devang, I won't be pulling you much. I just wanted to, conclude that, all these students are hardly 7 to 8 months younger to you. So many, they are all been, highly occupied and exhaustively prepared for both written as well as SSB. Two questions I would like to, you want to address. I Yes, wish sir. you can address to them. That is, one is, you can just fairly give a few details about how you prepared for clearing the written exam. Because as we Yes, know sir. that clearing the written exam is also not at all a cakewalk. One needs to be very effective in that. And, one word of wisdom that you would like to give to them, whatever your experiences have been so far. So I would like to request you to answer these two questions. Yes, sir. Their benefit. My written journey actually started when I was in class 11th. So I had joined a coaching for IIT JEE, and means I used to go there from 8th standard. So they had assured me ki don't take tension, your NDA written is our responsibility. So my preparation started in class 8, in October last year. So after our regular classes, we were taught regarding SST and other things in GAT. Maths was covered during JEE only. So after How about certain, you prepared for GAT? Because IIT JEE doesn't have that GAT syllabus with them. yes, So yes. what you So did? basically the syllabus जो base है सबका वो है NCERT. At least for geography, it is NCERT. And then Pathfinder जो book है NDA Pathfinder, that is enough. Great. So guys, you have been given Pathfinder. Yes, sir. Yes, sir. And Yes, MacBook. And I would also like to tell कि जो Pathfinder है ना उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है, उतना सब आपको होगा नहीं, मतलब और करने में कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि उसके क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है। सो बेसिकली आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसके आप अलग से नोट्स बनाइए और बस उसी को रिवाइज कीजिए। सो इट विल सेव योर टाइम एंड योर एफर्ट। एंड एनडीए रिटर्न का मतलब आपको बहुत ज्यादा इमैक्युलेट प्लान चाहिए आपके पास, सो आपकी चीजें बहुत इजी हो जाती है एनडीए रिटर्न क्लियर करने की। एंड वन मोर थिंग इज कि means I was appearing for 145. I had decided to appear. At that time, I was not eligible to join, but just for experience, I wanted to appear for NDA 145 and I wanted to clear the written. So in January itself, I started giving previous year papers. Even if you are not prepared fully, na, start giving papers. मतलब जो आपका weakness है वो आपको तभी पता चल जाएगा and you have enough time to cover up your weakness. So I had given a lot of previous year papers and which helped me eventually in clearing the written exam. आप लोगों को दिख रहा है जब ये देवांग बात कर रहा है, कैन यू सी द क्लैरिटी? मेरे को इस बंदे का टीएटी रेस्पॉन्स देख के मैं अंदर से दुखी होता था। हर एक के लिए नहीं होता था, इसके लिए बड़ा होता था कि यार ये लड़का कितना अच्छा है, इसका टीएटी ऐसा क्यों आ रहा है। एंड ही हैड नॉट इनिशियली, शायद इसने पहले एसएमएल ज्वाइन नहीं किया था ना देवांग? यस सर, पहले नहीं किया था। मैं बोल तो नहीं सकता ना एसएमएल करो करके, बट लकीली ही हिमसेल्फ केम। और मुझे तकलीफ होता था इस लड़के का टीएटी ऐसा क्यों आ रहा है, जबकि इतना रेस्ट थिंग्स आर सो गुड, उसका ये अंदर से ये क्यों आ रहा है। अब मैं इसको बोल भी नहीं सकता, बट वो लकीली खुद ही आ गया। एंड मेरे को सच बोलूं तो देवांग, आई वाज नॉट बिलीविंग कि तेरा इस बार निकलेगा बिकॉज ऑफ दोस्त टीएटी का इशू, बट ट्रेनेबिलिटी बहुत ज्यादा है यार 10+2 और एनडीए का। मतलब मैं बता रहा हूँ, नॉट फॉर एवरी कैंडिडेट आई विल नॉट फील। कुछ लड़के लड़कियों के लिए ऐसा लगता है यार ये लड़के में ये कमी क्यों है, साला क्यों नहीं निकाल रहा है इसको। तो ही वाज वन सच पर्सन जिसके लिए मेरा दिल से आता था कि यार ये लड़के में ये क्यों आ रहा है इस तरह का। एंड ही हैड नॉट जॉइन एसएमएल, लकीली ही जॉइंड, बट मुझे उम्मीद नहीं था क्योंकि मुझे अभी भी इसकी कहानियां याद था कि साला ये क्या लिख रहा है। एंड वन ऑफ द स्टोरी आई टुक योर स्टोरी सब्सिक्वेंट टू यू लिविंग द बैच, यस सर, वीडियो में, और मेरे को दुख होता था यार ये क्या आ रहा है इसका स्टोरी में, ये क्यों ऐसे आ रहा है। और बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि इस बार निकलेगा, बट एक चीज था, बंदे में दम बहुत है, प्रोवाइडेड वो गैप भर जाए।
ट्रेनेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और इस बंदे की सबसे अच्छी खूबी ये है, साला गलती हुआ एक भी झिझक नहीं, वही एक्सेप्ट करना सर गलती हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा, बट मेरे को गलती समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग साले गांधार्य है, ही इज नॉट। सो आई विल रिक्वेस्ट यू, देवांग से अगर आप लोगों को कुछ डायरेक्टली बात करना है, यू कैन स्पीक। ऑल्सो देवांग महाराष्ट्र का है, कभी कभी देवांग को हम लेके बीच में ऐसे करेंगे, एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि आपके जैसा 11th के 12th में निकला हुआ। देवांग, इफ यू आर कंफर्टेबल, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली शेयर योर नंबर ऑल्सो विद देम। यस सर। व्हाट्सएप में करना, डोंट कीप कॉलिंग हिम, नहीं तो उसका अपना पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। Yeah, Devang, share your number with them. Yes, sir. So, everyone who want my number, it is 84 85 87 44 65। कॉल ऐसा कॉल नहीं करना, बट ही इज वन ऑफ यू यार। अभी 12वीं में है, आप 11वीं में हो, 1 साल का फर्क है, एंड वी विल गेट हिम वंस इन अ व्हाइल ऑन द वो, बिकॉज इट विल बी एन इंस्पिरेशन। हम भी हमारा इस पूरा 40 के 40 बंदों को देवांग की तरह देखना है, एंड देवांग के बातचीत से आपको पता चल रहा है ही इज वेरी फोकस। मुझे इसका टीएटी रेस्पॉन्स में ढूंढूंगा, शायद मेरे पास अभी भी रखे होंगे, एंड आई विल शो यू कहां से कहां ट्रांजिशन किया है। सो आई विल लीव अनदर 10 मिनट्स फॉर ऑल ऑफ यू। देवांग से जो भी पूछना चाहते हो, बात करना चाहते हो, यू कैन स्पीक। देवांग, इंटरव्यू के बारे में बताओ, हाउ वाज योर इंटरव्यू देवांग? सो मतलब फर्स्ट मतलब एक्चुअल एसएसबी का इंटरव्यू या एक्चुअल एसएसबी का? ओके। सो आपको कैसे होता है ना कि आपको 30 मिनट्स पहले रिपोर्ट करना होता है एक जगह पे, जहां से आपको वहां बिठाया जाता है, एंड देन आफ्टर योर चेस्ट नंबर फ्लैशेस यू गो टू अनदर रूम where your files are collected and then sent to the interviewing officer. So he studies them a bit and calls you for interview. So I was called in, and then actually means after my interview I got to know after the conference that my interview was a Maharashtrian, but at that point of time he made me felt that he's somewhat from North India, and पूछा कि good morning Devang, how are you? मतलब इतने अच्छे से बात करेंगे वो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये आपका इंटरव्यू लेने वाले, ऐसे लगा कि आप मस्त उनसे बात करने जा रहे हो। सो देन थोड़ा सा एक रैपोर्ट क्वेश्चन हुए कि आप यहाँ पे कैसे आए हो, आपके नाम का मतलब क्या है, इन दैट सेंस, एंड देन ही आस्क्ड मी कि देवांग आर यू कंफर्टेबल, सो वी विल मूव फॉरवर्ड। एंड देन मेरा इंटरव्यू हार्डली 20 मिनट्स चला होगा। सो द फर्स्ट वाज CIQ एंड एजुकेशन, द सेकंड वाज CIQ on family background, third was CIQ on hobbies and interest. He asked me one international news and about the Rafale deal, not Rafale deal, latest Air Force acquisitions and why you want to join armed forces. बस इतने सवालों में मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। हार्डली 20-25 मिनट्स चला होगा इंटरव्यू। मतलब पहले तो मुझे इतना बुरा लगा कि यार मुझे लगा कि इस बार तो नहीं होगा, इतने जल्दी बाहर निकाल दिया। मतलब मैं बहुत सैड था कि So this shows that this is another myth which is being spread out that जिसका इंटरव्यू ज्यादा टाइम चलेगा उसका होगा, जिसका कम होगा that means that candidate में इंटरेस्ट नहीं है and all sorts of. But then if the clarity is 100% and you know that is how मतलब within मुझे 25 बाद में minutes your पता चला interviewing कि officer who is very experienced he could able to meet the expectations and he framed his mind that you are a good candidate, right? Yes. So बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअली जिनका कम टाइम चलता है तो वो तो मतलब श्योर शॉट हाँ होता है या श्योर शॉट ना होता है, क्योंकि मतलब इतने कम टाइम में अगर आपको एसेस कर पा रहे हैं, सो इट इज योर बेनिफिट इन दैट। देखो एक सेकंड, अभी जैसे अपना AFPI के बच्चों को मैं अभी 4 सवाल पूछता हूँ आपसे, कुछ पूछता हूँ, तो मेरी नजरों में मैंने आपको एक बार भी फिजिकली नहीं मिला हूँ, बट आप लोगों के जिस तरह से आप मुझसे रेस्पॉन्ड करते हो, मेरे दिमाग में कुछ नाम छपा हुआ है। आप सुन रहे हो AFPI वाले बच्चों क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. आपके सवाल जवाब के कारण, जिस तरह से आप मुझे इंटरेक्ट करते हो, जिस तरह से मुझे रेस्पॉन्ड करते हो, मेरे दिमाग में जाने अनजाने कुछ नाम छप चुका है, उनके साथ मेरा एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ा हुआ है। ऐसे लोगों का मेरे को पता है इसमें दम है, मुझे पता चल रहा है ना। आज जैसे मैंने 4 सवाल पूछे थे देवांग के ज्वाइन करने से पहले, मेरे को पता चल रहा है कुछ लड़कों के नाम मेरे दिमाग में बार बार फ्लैश हो रहा है। आई डोंट नीड टू मच ऑफ अ टाइम टू डू दैट। कुछ लोगों का नाम मेरे रजिस्टर ही नहीं हो रहा बिकॉज यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग। तो देवांग ने जैसे बोला, और एनडीए का एज यंग है साला, अंदर एंट्रीज, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी 5 इंटरनेशनल न्यूज, टेल मी समथिंग। कुछ चीजें 4-5 पूछा, एक अंदाजा लग रहा है इस बंदे में, यंग एज, ट्रेनेबिलिटी हाई, क्या चाहिए यार।
द सेम थिंग मे नॉट बी ट्रू फॉर टीजीसी एंड सर्विस एंट्री, उसमें वो टाइम ज्यादा लगा। उसी तरह से 2 मिनट में बोलेगा ये कौन आ गया थका हुआ बंदा, सीधा बैठ नहीं पा रहा, हाथ पांव हिल रहे, उसको भी जल्दी भेज देंगे। इसका मतलब नॉर्म नहीं है जल्दी भेजने का, बट जल्दी भेजने का मतलब ये भी नहीं है कि तुमने अच्छा नहीं किया। बस जैसे माँ लोग अपना चावल को कैसे करते पुराने कुकर से पहले 2 दाना लेके ऐसे ऐसे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर इनका दिन रात का काम है, उन्हें बेवकूफ बनाओ मत। यस हाँ, वही वो सबसे मेन बात है। मतलब ही विल मेक यू फील वेरी कंफर्टेबल। आप इतनी झूठ बोलोगे ना, आपको लगेगा कि आप उसे मस्त बना रहे हो, मतलब कोई स्टोरी बता रहे हो, वो भी ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा जैसे बहुत इंटरेस्टेड है वो जानने में, लेकिन उसे पता है कि आप कहाँ पे झूठ बोल रहे हो और कहाँ पे सच बोल रहे हो। सो नेवर एवर ट्राई टू स्पीक एनीथिंग कि जो आपने नहीं किया है या जो आप नहीं हो। सो बिकॉज आपको बिना पता चले दैट थिंग यू विल बी कॉट, एंड एज संदीप सर टेल्स, इफ यू आर कॉट देन यू वोंट गेट रिकमेंडेड एट दैट टाइम। बिकॉज आपको आता है कि जो सर कहते हैं कि बेसिक कोई भी तीनों सर्विसेज का एक ये है कि आप इंटीग्रल या ऑनेस्ट होने चाहिए, और जब आपका वो कोर क्वालिटी उन्हें नहीं दिखता है तो हाउ वुड दे पिक यू? सो कोर क्वालिटी छुपाना कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो जो है सो है। बिकॉज इफ यू हैव द गट्स टू इम्प्रूव योरसेल्फ ना, एसएसबी विल रिकमेंड यू। बात खत्म। बिकॉज बहुत सही बोला, अपने आप को परिवर्तित करने की ताकत दिखा दो, ना कि साला कोर क्वालिटी हाइड करने की। हाउ कैन यू हाइड कोर क्वालिटी यार? यू कैन नॉट हाइड। दिख रहा साला बंदे में एक टायर पंचर है, इंजन खराब है, एंड यू आर टेलिंग टू हाइड इट। सो कुछ नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने अंदर वो साला ताकत पैदा करो परिवर्तन करने का। सो आई डोंट नो कितनों को समझ में आया। यस सर, सर समझा। यस सर। चलो आई थिंक हमने बहुत टाइम ले लिया देवांग का भी। Okay, chalo Devang, I'll speak to you separately. You're coming into the group. Batch was very good. This is a school at Nagpur, Armed Forces Preparatory Institute. जिन्होंने आपसे बात किया था, his name is Akhtar Pandit. He is the director of this institute and is doing a fantastic job. Thank you, अपना Devang, for being part of this. And I'll speak to you separately. And I hope बाकी बच्चों के लिए भी एक motivation है ये। सर आई लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन सर। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था सर, मैं बाहर हो गया था मीटिंग से। सर इंटरव्यू में सर ऐसे बोल सकते हैं जैसे अभी भैया बोल रहे थे? क्या बोल सकते हैं? तो मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स या फिर मतलब? हाँ दैट मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, बट अगर आपको पता लग रहा है कि आपको जो कन्वे करना है वो आप इंग्लिश में नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन स्विच टू हिंदी एंड रिवर्ट बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल। वो आपको पहले इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। बिल्कुल, मतलब आपका बोलना इंग्लिश में है, कहीं अटक रहे हो तो इंग्लिश में बोलो एंड कम बैक टू इंग्लिश। सो इम्प्रूव योर इंग्लिश। मतलब बीच बीच में हिंदी मतलब आ गई तो चलेगा? एब्सोल्युटली चलेगा। हर टेस्ट के पहले ना वो बोलते हैं कि स्पीक इन इंग्लिश as far as you are able to communicate and express yourself clearly, but whenever you feel stuck up you can switch to Hindi। मतलब आप जो बोलते हो वो मेन है, कैसा बोलते हो that is not important, आपके थॉट्स उन्हें कन्वे होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और वो खुद आपको वही बोलते हैं कि आपके थॉट्स हमें कन्वे करो। थॉट्स में क्लैरिटी। यस सर। That is how you can bridge the connect. That is how you can bridge the connect with the interview officer. If he is not finding it interesting, how he will continue with you? आप झूठ बोलो, चोरी चकारी करके उनको बेवकूफ तो नेचुरली आपका कनेक्ट टूट जाएगा। फिर आप अंग्रेजी लेके क्या करो? तो बेवकूफ तो बनाओ मत, अपने आप को जो हो वो हो, कमियों को और एक्सेप्ट करो कि अगर आप में इस एसएसबी में आप नहीं हो सकते तो आप नहीं हो सकते। आप अगले एसएसबी में शायद प्रिपेयर करके ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हो। सो अगर आप में नहीं है तो देन लेट दैट अपॉर्चुनिटी गो, आगे और 1000 आएंगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो। या प्लीज आस्क फैम। सर आप मतलब आप अभी इंग्लिश में बोल रहे थे, तो आपने इंग्लिश इतनी आपने अच्छी प्रिपेयर कैसे की? मतलब यार, मतलब मेरा तो इंग्लिश काफी वीक पार्ट था ये। मतलब ये जो है ये मेरी नेचुरल थी, एंड देन जस्ट आफ्टर प्रैक्टिसिंग ग्रुप डिस्कशंस एंड लेक्चर एड्स। सो बेसिकली आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो इन दोनों चीजों से हो जाएगा। एंड एज फार एज यू हैव नॉलेज, सो यू विल फील कॉन्फिडेंट। एंड वंस यू स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद पीपल इन इंग्लिश, सो देन इट इज अ वेरी not random, it's very often to speak in English nowadays. And once you start speaking, then you get confidence in speaking English. And basically ये मत सोचना कि आपकी इंग्लिश पे जज करेंगे। If you think that, then you won't be able to improve. English is just a medium of communication, and wonderful, as it is a requirement.
और आप as it is a requirement of SSB, you need to work upon it. और सबसे अच्छी बात है आप लोगों के पास सबके पास टाइम है 1 साल का, साला 1 साल. Yes, and हाँ, time is the most important thing. मतलब मैंने अक्टूबर में क्लासेस किए थे and then I got whole 3 months to upgrade myself and then मेरा recommendation हो गया. Yes, sir. Good. I think Wonderful, you, sir. Shashank. It's been a very precious morning for all of us, indeed. And thanks to Babu sir for giving us this opportunity. Thanks to you for interacting with the students. देवांग का कॉल आके वो अच्छा हो गया. Yes, absolutely. देवांग So, Shashank, I would like to Devang, I would like to congratulate you on behalf of entire team of Chhatrapati Shivaji Maharaj Armed Forces Preparatory Institute. Being a Maharashtrian, getting recommended is another this thing. Nothing as such discrimination part, but then it feels proud that somebody from Maharashtra has made it. And Yes, we wish you all the best for your future endeavors. I hope you'll stand in merit also, and you'll Yes, join sir. the academy very soon. Best of luck. Best of luck. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you देवांग. I'll And speak to you separately. Thank you and God bless you all. Yes, sir. वाले I think देवांग से बात करके हम सबको एक ना इंस्पिरेशन है. And I'm sure this will act as an energy. बंद नहीं होना चाहिए. Yes, sir. Yes, Thank sir. you. Yes, sir. So that was the communication between Devang Ashtunkar and Mr. Athar Patil and his students जो Armed Forces Preparatory Institute के. तो मुझे जरूर बताना कि on the various topics that the conversation happened. What did you understand as a young boy? आपको कैसे लगता है इस लड़के का sincerity of purpose and willingness to put the effort? Or I'm not asking him to follow him. You have to have your own path, but there has to be an effort, alignment and clarity. In absence of clarity, effort में दिशा नहीं आएगी. That's my message that I want to share. तो मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना. अच्छा लगेगा तो मैं इसका और भी इसका लंबा कम्युनिकेशन था हमारा उस दिन का. अथर काफ़ी घंटे से बात किया तो मैं उसको स्प्लिट करके बना रहा हूँ. So give me your feedback and I'll post the balance of the videos also. Like it if you like it. Subscribe नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना. And अच्छा लगे तो जरूर शेयर कर देना, है ना. There is no marketing by me. I'm not spending 1 rupee on marketing. It is simply on the clarity. तो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है जरूर शेयर करो. That will be my marketing. So you are my agents of marketing. So do that and do post your comment. And just to repeat, those of you wish to register for the 26th batch, 2 weeks batch is from 26th to 8th and 4 weeks from 26th to 22nd of May. So kindly WhatsApp me at 82755777650. I'll get back to you. Thank you and may God bless you. Thank you very much.